Hello students, in today's class we will be covering question number 3 of exercise 2.2, which says that the base of an isosceles triangle is 4 by 3 centimeter. The perimeter of the triangle is 4 2 by 15 centimeter, which is given in mixed fractions. We have to convert it into improper. After that, what we have to find is, we have to find the length of the either of the remaining equal sides. That means we know that an isosceles triangle is a triangle. Suppose if I draw a triangle which is isosceles, so it is a triangle in which two sides are equal. Suppose these two sides are equal over here, and they are already telling us that it is an isosceles triangle in which the base is given to us as 4 by 3. That means base will be 4 by 3. And what we have to find, I am reading the last line of the question, what is the length of the either of the remaining equal sides? That means we have to find the remaining equal sides. That means this side and this side. So in my previous videos I have already told you that whatever we have to find, we always take it as x, and we know that we have to find these equal sides, so we will take both of them as x. Why? Because both of them are equal, as it is an isosceles triangle. Okay, so that is why I have taken let each of the equal sides of the isosceles triangle be x. ओके, सो हमने इन दोनों इक्वल साइड्स को x ले लिया. अब हमें फाइंड क्या करना है, इसी x को फाइंड करना है हमें. तो अब कैसे फाइंड करा जाए? वी आर गिवन वट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन. फर्स्ट विल राइट ऑल दैट इन्फॉर्मेशन. बेस ऑफ द ट्राइंगल इज गिवन टू अस एज 4 by 3 centimeter. आफ्टर दैट पेरीमीटर इज गिवन टू मी as 4 2 by 15 centimeter, which I will convert into improper. How? First we will multiply 15 into 4, which will give me 60, and 60 plus 2 will be 62. So the improper fraction of 4 2 by 15 will be 62 by 15 centimeter, which is the perimeter, which is given in the question. So now we already know that in order to find the perimeter of any given figure, what we do, we add all the sides. हम क्या करते हैं, हम सारी साइड्स को ऐड कर देते हैं. अब इसके अंदर हमें पता है कि तीनों साइड्स क्या होती हैं. ट्राइंगल के अंदर कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं. तो हमने क्या करा, s प्लस एस प्लस एस, और हमें पता है कि इसके अंदर 2 साइड्स इक्वल हैं. 2 साइड्स इक्वल हैं जिनको हमने क्या लिया हुआ है, x प्लस एक्स, और तीसरी साइड जो कि हमारा क्या है, बेस, जो हमें क्या दिया हुआ है, 4 by 3 सेंटीमीटर. तो हम क्या करेंगे, बेस की जगह हम क्या डाल देंगे, 4 by 3, और 2 साइड जो इक्वल है उनकी जगह क्या लिख देंगे, x एंड x. और हमें पेरीमीटर तो पहले से ही दिया हुआ जो कि हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया है, 62 by 15. अब x प्लस एक्स विल बी 2x, एंड 4 by 3 को तो मैंने ऐसे ही रखा. उसके बाद मैंने क्या किया, लाइक टर्म्स को इकट्ठा करते हुए मैं 62 by 15 के साथ किसको ले गई, 4 by 3 को. 4 by 3 जब लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे प्लस हो रहा है, इसको मैं लेफ्ट साइड पे लाऊंगी तो वो क्या होगा, माइनस, इक्वल टू 2x को तो मैंने छेड़ा ही नहीं, वैसे ही रखा. So now since there was no space on the board, so I didn't do the question, so I am completing it now only. So let me rub it and then solve it step by step, whatever is remaining. So हमारे पास लास्ट स्टेप क्या था, 62 by 15 minus 4 by 3 which is equal to 2x माइनस 4 by 3 विच इज़ इक्वल टू 2x. अब क्या करेंगे, इसके बाद हमने लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लिया. अब क्या करेंगे, इन्हें सॉल्व करने के लिए हम क्या लेंगे, एलसीएम. तो एलसीएम हमारा क्या आएगा, 15. अब मैं लेके दिखा देती हूँ कि 15 कैसे आएगा. सपोज मैंने 15 और 3 का रफ में एलसीएम लिया, तो वी ऑलवेज टेक द प्राइम नंबर्स. सो 3 into 5 विल बी 15 एंड 3 into 1 विल बी 3. अब 5 को 5 के साथ ही लेंगे, 5 into 1 5 एंड 1 का 1 आ गया. सो अब इन दोनों को फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. 3 into 5 मेरे पास क्या आ गया, 3 into 5 मेरे पास क्या आ गया, 15. दैट मीन्स LCM इज 15. LCM तो हमारे पास 15 आ गया. अब क्या करें, 15 को हम कॉमन बेस ले लेते हैं, क्योंकि हमें लाइक फ्रैक्शंस बनाने तभी हम उसे माइनस कर पाएंगे. अब 15 का तो 15 ही है, तो 16 2 तो सेम ही रहा. अब 3 को 15 बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 5 से. ऐसे ही 4 को भी किससे करूँगी, 5 से. तो यहाँ पे क्या आ गया, 20, और 2x को मैंने 2x ही रखा. 62 minus 20 विल गिव मी 42 by 15, जो कि मैंने ऐसे ही रखा. रब कर देते हैं. अब क्या करते हैं, 42 by 15 तो ऐसे ही रहा. अब ये 2 यहाँ पे क्या है, 2 times x, दैट मीन्स 2 इज मल्टीप्लाइड विद x. तो जब मैं इसे राइट साइड पे लाऊंगी या लेफ्ट साइड पे लाऊंगी, मतलब इसकी पोजीशन चेंज करूँगी, मैं एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाऊँगी, तो ये क्या होगा, डिवाइड. ठीक है. अब सारी नंबर्स इकट्ठे हो गए. 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 ले लो. और इन वन ऑफ माई प्रीवियस वीडियोज आई हैव टोल्ड यू हाउ टू डिवाइड द फ्रैक्शंस, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट इफ़ यू वांट टू लर्न हाउ टू डिवाइड फ्रैक्शंस. तो वी ऑलरेडी नो दैट एज वी हैव लर्नड इट कि जब भी हम फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होता है और नंबर क्या होता है, रेसिप्रोकल. अब क्या करेंगे, सिंपली 42 and 2 आर बीइंग रिड्यूस्ड, सो 2 into 1 is 2 and 2 into 21 is
42. 21 into 1 will be 21 and 15 into 1 will be 15. So the value of x is 21 by 15. But we can see that it is further being reduced into lowest form. 3 से काटते हैं इसे, 3 7 21 and 3 into 5 is 15. So the value of x is 7 by 5. और x को हमने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में क्या लिया था? Equal side. That means the equal sides of the isosceles triangle is 7 by 5 centimeter, which is the answer. But since the question was in mixed fraction, so we have to convert this back again into mixed fraction. इसे mixed fraction में निकालते हैं. 5 into 1 5, 7 में से 5 गए 2. So the mixed fraction will be 1 2 by 5 centimeter. और अगर आपको आंसर भी चेक करना है तो 5 into 1 is 5, 5 plus 2 7, 7 by 5 हमारा आ रहा है, तो mixed fraction is correct. So the value of each equal side is equal to 1 2 by 5 centimeter, जो कि हमारा आंसर है. I hope it is totally clear. So with this I will end the video, and don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. Goodbye.